to subscribe to my YouTube channel, press the bell icon, and get notified when the video drops. Here, Bailey How are you? is here. What's up? That's Morjo's doggy. Right. So he's staying with us. Your network's cracking. Just usko bol to bhi silent. Can you hear me? Yes, I can. How are you? I'm good. What's up? What's happening? All good here. So many people have to join in. Couldn't contain their excitement, and they were like, "Call Amal, call Amal." How So sweet. Sorry I had to deal with that, but I'm trying to wear a little different outfit for every live so that your mic is muted. Yeah. you Go were for talking it. about, and every time you have collaborated with Arijit, your music and Arijit's voice. Simple, heartfelt melody. And almost 6-7 years ago was when I made this tune. I was doing this during Hero. मैं हूँ हीरो तेरा जब मैं कर रहा था with Kumar sir. Obviously with him also our combination together only. It's without the writer तो यानी कोई गाना चलता नहीं है. सिर्फ सिंगर पे या सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर पे नहीं. तीनों कड़ियाँ जब स्ट्रॉन्ग होती है तब म्यूजिक अच्छा होता है. और मेरे अरेंजर्स और म्यूजिशियंस भी उन सबका एक टुगेदर एफर्ट है. And obviously, Arijit is the cherry on the whole cake. But that whole cake is created by Kumar and me and my whole team. So there is a form of a blessing. I feel he's really blessed, and I'm also really blessed to have really honest, heartfelt music listeners and fans. और साथ में जब आए, whether it's सुबह सुबह, सोच ना सके, सूरज डूबा है, रोके ना रोके नैना, and then चल वहाँ जाते, and he's given his 100%. And I like that about him. But he's an evasive guy. You have to really, really find him to get him to sing a song. और वो जब ये देखेंगे शायद देखेंगे भी नहीं क्योंकि वो इंटरनेट पे नहीं रहते. But if he sees this, he will feel bad that I'm complaining about him. But he is in his own space. He has a different perception to life. He likes his privacy. He doesn't like to be available everywhere and anywhere. तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट द एंड रिजल्ट एज यू सी द वर्क, द डेडिकेशन एंड द फील दैट ही पुट्स इन द सॉन्ग कि सॉन्ग 99% पे आ जाता है, बट वो लास्ट 1% सिंगर अगर यहाँ वहां हो जाता है तो फिर आई थिंक अ ग्रेट सॉन्ग ऑल्सो डजंट रीच आउट. सो आई डोंट थिंक it would have been easy if he had not given his 100%. He's so busy doing world tours, everything he was doing, and he still sang all these songs for me and killed it. So it's amazing. I think जब हम लोग साथ में आते हैं कुछ एक blessing है from a supreme power कि ये गाने हमेशा साथ में चलते हैं हमारे. Beautiful. One of our followers and your fan, he requested me to ask you to sing the song, so that he has an online class. So he wants me to save this for him. So can you sing the song? Yeah, okay. दिल को मैंने दी कसम न धड़के तेरे बिना, धड़के तो सारी जिंदगी, धड़के तो सारी जिंदगी, धड़के तेरे बिना. Beautiful. Thank you so much. Into many hearts. Yes, thank you guys for so much love, and I want to say it's not about the views and all of that. Like that is something which will happen if it's good, and promotions है, campaigns है, हम ये सब करते हैं, interviews भी करते हैं, but end में अगर गाने में soul नहीं है and it doesn't touch people's hearts, then कुछ भी कर लो, promote कर लो, views push कर लो, ये कर लो, कुछ I don't think anything will work. I think what is working for this song is its honesty, Arijit's simple, heartfelt singing, Kumar's beautiful words, and obviously the cast, the director, the music label T-Series, the music supervisor, सबका एक बहुत ही अच्छा heartfelt involvement रहा. So the song is getting the love it's getting, and I think for me personally, winning hearts is more important than winning charts and numbers. So that's very important. A lovely phrase. One of the most interesting things that happened in the lockdown is artists घर पे बैठ के गाने लिख कर रिकॉर्ड करके लाइव जा रहे हैं या फोन पे कंपोज कर रहे हैं. और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट इनके लिए काफी अच्छा रहा है. जैसे कि मेरी बात हुई कुछ आर्टिस्ट के साथ,
आपका क्या thoughts है इसके ऊपर? What do you think? How has this given a sense of freedom to independent artists? Music, as they say, but there's no such thing as Bollywood music, man. This country has so much music, such artists जो undiscovered है and जो talented है, जो upcoming है. You see Pratik Kuhad, you see, even people Sky Harbor. There's such amazing bands and musicians, different music, जो indie music जो real है, जो कभी कभी obviously labels के साथ है, कभी बिना label anyway बनता है, हो रफ्तार हो, everyone, like they're all Badshah. I think independent music, which we sadly call non-film music, is the way to go now. And the pandemic has proved कि पिक्चर आए ना है, लोग गाने तो सुनना चाहते हैं, नहीं तो गाने इतने नंबर्स और इतना प्यार गानों को नहीं मिलता. And they're looking for good original content, whether it's music, whether it's all these OTT platforms. Songs are going to be the only way of feeling happy and connected to your partner, your friend, your family. So I think this is the best time for independent music. और इंडिया में 90s में दौर था, बट कहीं ना कहीं उसमें भी काफी सिर्फ remixes ही हो रहे थे, originals बहुत कम थे. सोनू जी के एक दो थे, तो there were artists doing KK and Shan, but slowly that era died and film music took over in such a big way कि मुझे लगता है कि it's sad क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं, obviously I'm made because of being in Bollywood and everything, but I personally have never let that side of my music die. I've done मैं रहो या ना रहो, चल वहाँ जाते, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, अरमान के साथ done आ जाना फरारी में, recently did Zara ठहरो. So हम non film music, independent music कर रहे हैं to make people understand. मैं कहना चाहता हूँ कि support these artists, support people, लेबल नॉन लेबल, जिस्ट जो अपना ओरिजिनल अच्छा म्यूजिक करना चाहते हैं और ला रहे हैं बाहर, क्योंकि फिल्म्स तो अभी लकीली और अनलकीली बहुत दूर हो चुकी है, थोड़ा टाइम एंड चाहते हैं और ला रहे हैं बाहर, क्योंकि फिल्म्स तो अभी लकीली और अनलकीली बहुत दूर हो चुकी है, थोड़ा टाइम एंड ऐसा ही होता है. वेस्ट में तो ऐसा नहीं है कि यू नेवर सी लाइक जस्टिन बीबर गो एंड टेल टॉम क्रूज दैट आई मेड अ सॉन्ग फॉर यू. ही इज अ सुपरस्टार हिमसेल्फ and they are equal stars as actors or anyone. So I think that changed these young boys, whether it's even Darshan or Arman, they're heartthrobs of the the youth of today, or Badshah or Honey Singh. I think these guys have started it beautifully, and now with newer people coming in and doing their best, I think it's the most amazing time for independent music. And I want to tell everyone, जो एक बात छिड़ी थी कि बॉलीवुड में घुसना आसान नहीं है, कैंपिज्म है, ये है वो है. मैं जानता हूँ, मैं उससे गुजर चुका हूँ, मैंने इन बातों के बारे में बातें भी की है. और उस टाइम पे मुझे लगता है कि किसी ने इंडस्ट्री में मेरी और अरमान की उस टाइम पे कोई सपोर्ट नहीं की थी. नाउ पीपल टॉक अ लॉट एंड से कि हम ये है वो है, सब है, बहुत हर जगह पे नेपोटिज्म है, हर जगह पे कैंपिज्म है, पर काम बोलता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज है कि इंस्पायर द लाइक हाउ अरिजीत और सोनू निगम हैव नाउ made their labels. Every artist make their label, do your own music. आप अगर लेबल पे डिपेंड करके, if you are working, see my simple math बताता also. I know I'm going beyond this, but if you are working for someone, they have commissioned you to do the job, to do music, then they will decide what kind of song they will want. Na? They are paying you for it. So your creativity takes a back seat and it depends on your personality. मेरे को कमीशन जॉब के लिए भी टू डू अ सॉन्ग मैं अपनी रखता हूँ कि 60% मैं अपने दिल की सुना, 40% आपकी ब्रीफ की सुनूंगा. सो इफ यू डोंट वांट टू लिसन टू समवन, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, डू इट ऑन योर ओन चैनल. एंड आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड एंड दैट इज हाउ योर पर्सनल नंबर्स विल ग्रो, हाउ विल रीच आउट एज एन आर्टिस्ट. एंड it's an amazing time. I think this is the time when everyone should start doing independent music and maybe change the game and make us from Bollywood music to Hindi film music to just music, which has not happened in so long. It's a lovely thought. I'm sure a lot of young musicians will be inspired and motivated. यहाँ पे young तो मैं भी हूँ. तो ज़्यादा आप यंग हैं, आपकी बात सुनकर और ज्यादा मोटिवेटेड होंगे. मेरी एफर्ट यही रहती है कि मैं नए जनरेशन को इंस्पायर करूं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ये अच्छी जगह नहीं है, इस देश में म्यूजिक नहीं होता. बॉलीवुड में घुसना करना, उसमें ये नहीं कि फोन हो गया था और काम मिल गया. मैं भी 16 के एज से असिस्टेंट हूँ, तो 23-24 में मुझे मिला एक ब्रेक, मेहनत से, अच्छे गानों से. तो वही पर वो उम्मीद रखना कि इधर से ही मैं स्टार बनूंगा, वो गलत है. अब वो चेंज हो गया. अब आप यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से कहीं भी अगर आपने अच्छा गाना गाया, गिटार लेके, एक पियानो लेके, हार्ट फेल्ट लिरिक्स गाए, तब वहां से भी स्टार हुआ, वो गलत है. अब वो चेंज हो गया. अब आप यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से
कहीं भी अगर आपने अच्छा गाना गाया, गिटार लेके, एक पियानो लेके, हार्ट फेल्ट लिरिक्स गाए, तो आप वहां से भी स्टार बन सकते हो. सो आई थिंक नाउ द मीडियम इज सेट, दैट इज डिजिटल. यू कैन जस्ट be live, sing, and your video can get screen recorded and shared a million times. So don't worry and don't depend on Bollywood. Let's make Yeah. our own music, our own path. Right. So there are some requests also. Yeah. आप सुनते हैं, सबको पसंद, पर आप टॉप 5 कौन से हैं जो आप and I don't want you to tell me, but I want you to sing for our My top 5 what? I didn't hear you. Top 5? the top 5 songs in your playlist. Top 5. I can't sing all of them because most of them are English now. And I'm not very good with English. Arman is very good with that. Yes. But यानी हिंदी गानों में से can I say like which are my top 5 नहीं करते, but like जो मेरे यानी प्लेलिस्ट में आज भी रहे हैं, I have always been something like Hawaii, I'll sing that, and Shayad also is a beautiful song. And you know, क्योंकि बॉलीवुड ने काफी टाइम से यानी रिमिक्सेस इतने किए कि मेरे को ओरिजिनल्स थोड़े याद नहीं आ रहे, बट है काफी अच्छे गाने भी है. And recently Arman did one song with Mithun sir, मेरा इंतजार करना, from Khuda Hafiz. That's also one song I like. So these 3 songs are there, and obviously the music that Dua Lipa or Cardi B and Justin Bieber, DJ Khaled and Childish Gambino, these are the artists that I am listening to. And बहुत ऐसे नॉन फेमस आर्टिस्ट से बाहर के भी जो बाहर भी एस्टैब्लिश नहीं है जिनको मैं सुनता हूँ. And even some old stuff like Seal and Porcupine Tree. So ये सब थोड़े unknown नाम है, तो मैं इसलिए ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा. I'll sing you 2-3 songs which I feel, you know, are really nice and still stay with me. बनाती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले, इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले, शाम ढले, मौसम ढले, देती है जो सदाएं हवाएं हवाएं, ना जाने क्या बताए हवाएं. शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको कहे बिना, समझ लो तुम शायद. सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर के तेरी सांस चलती जिधर, रहूंगा बस वही उम्र भर. शामों सवेरे तेरी यादें आती है, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है. ओ सनम मोहब्बत की कसम, ना है ये बहाना, ना खोना भी है, तेरा ना होना जाने कैसे बताए, क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए. बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए, तू जाने ना. तो ये सब थोड़े मेरे फेवरेट सॉन्ग्स है और मैंने ऐसी एक फ्लो में गा दिया. आवाज नहीं आ रही. Can you hear me? Yes ma'am. Sorry मैं आपका नाम भूल गया. Sorry? Forgot your name. Amrita, okay. जितने लोग आपके गानों को पसंद कर रहे हैं, उतनी आपकी फैशन सेंस बहुत पसंद कर रहे हैं. लोग कपड़ों के बारे में बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा आपके फैशन सेंस के बारे में, आपकी जो पर्सनल स्टाइल है उसके बारे में अगर आप बता. लोग सवाल पूछ रहे हैं इस बारे में. सब फटे हुए कुर्ता पजामा टी शर्ट और जीन्स घर पे मैं वही पहनता हूँ. ये थोड़ा लाइव आ रहा हूँ तो थोड़ा शरीफ और नॉर्मल लगने के लिए,
मैं ऐसे सब कपड़े पहन लेता हूँ और मोस्टली मेरी शॉपिंग मम्मी या कभी कभी मोरजो या सबा इन लोग ही कपड़े ढूंढ ढूंढ के स्टाइल करके लेके आ जाते हैं. But my personal style is very chill, very chappals, pajamas, and some maybe Marvel comic T-shirt types. So it's not really something that I have had since long. But I just try to keep it simple. That's my style. I don't go over the top. But if I ever try that, so I will maybe do something which will surprise and scare everyone. But तब तक simple और अच्छे से कपड़े पहन के live करने में I think it's better. लॉकडाउन में काफी क्रिएटिव चीज की आपने, बट कोई नई जो परस्यू किया लॉकडाउन के समय? काफी वक्त मिला होगा घर पे. मैंने बहुत सारा क्रिकेट खेला घर पे, अकेले दीवार पे बॉल फेंक के खुद बैटिंग की. फिर बहुत सारे गाने बनाए जो मुझे इतने सालों में मैं काफी फिल्म्स भी कर रहा था, शोज भी हो रहे थे, तो कहीं एक पर्सनल ब्रेक और टाइम नहीं मिल रहा था. तो आई गॉट दैट 2-3 months. और मैं वैसे ही घर पे रहता हूँ ज्यादा. आई एम नॉट अ पार्टी गाय. सो मेरे लिए एक बहुत पीसफुल, एक अमेजिंग, इट वाज लाइक अ होम वेकेशन. एंड मैं रह रहा था, काफी खाना वाना बनाना, बेसिक रेडी टू मेक खाना ओनली, नॉट अमेजिंग खाना, बट घर पे खुद के लिए कुछ बना पा रहा हूँ. चाय बना पा रहा हूँ, ग्रीन टी बना पा रहा हूँ, सॉसेजेस, एग्स, ये सब मैं थोड़ा अपने आप को खुश रखने के लिए खाना जो होता है, जो वो सब. and I've learned that, understood the value of getting up little early maybe. मैं 9 बजे तक सोता था, सुबह के 9 बजे जाता था सोने. आज मेरे मोस्ट इंटरव्यूज ऑलमोस्ट सिर्फ आगे पीछे 5-10 मिनट लेट हुए, बट इवन माई फैंस आर सरप्राइज कि जो प्रॉमिस किया वो आज हो पा रहा है. सो आई होप ऐसे ही चलते रहे कि मैं 1-2 बजे सो जाऊं एंड 9 बजे से उठूं, बिकॉज आई थिंक दैट विंडो ऑफ 9 o'clock to 2 o'clock में काफी काम हो जाता है, फिर मैं दोपहर को सो लूंगा. So these things I've enjoyed during the lockdown, but obviously challenge raha hai to record with my friends, with my musicians in studios, and internationally also orchestras को book करना, उनके permissions लेना, record करना मुश्किल था, but I think I learned more about myself. I have spent a lot of time, missing friends, missing people who used to always be, अभी धीरे धीरे 1-2 आने लगे हैं, मिल रहे हैं. So now it's getting little better, but it's completely not safe. So, जैसे हम पूरी एक महफिल मिलके स्टूडियो जाते थे, मेरे सब दोस्त, मेरे जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, 7-8 दोस्त है, वो सब स्टूडियो जाते थे, हम लोग रिकॉर्डिंग्स करते थे. आज वो नहीं हो सकता. आज इट्स मोर लाइक घर पे बैठो एंड वहां से मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि ढोलक या फ्लूट या सारंगी, everything's happening from home now. It's a little sad for musicians like me who like to jam with their team, but I think it brings you closer to reality, closer to the idea कि इतनी चीजें जो हम चेस कर रहे हो नेसेसरी नहीं है. सिंपल उठना, खाना, गाना बनाना, इन चीजों में जिंदगी कट सकती है. कोई पूछ रहा है what's written on your cup? We came, we raved, we loved. Swedish House Mafia का I think that was the last tour का tagline, and that's what it is. मेरे घर में ऐसे बहुत कप मिलते हैं, मैं पढ़ता नहीं उन्हें, मैं सिर्फ पीता और छोड़ देता हूँ. You just introduced us to your furry friend. Yes, Bailey. That is my manager, Morjo. His doggy, Bailey. And he's a baby. And वो उधर से वहाँ देख रहा है. करो. आजा वापस. We'll get him back. Come. We'll say hello. डर जाएगा, काट लेगा मुझे. अरे अरे अरे. Oh God. This is the first time I met him, na? Oh God, her. Sorry. Wow. Chalo. I'm with this wonderful puppy, and she is giving so much प्यार. यानी इतना प्यार तो आपके बॉस ने नहीं दिया मुझे. पूरे दिन लगे रहते दूसरे आर्टिस्टों के वीडियो शूट्स में और सबके शोज में, और अब आप आए हो. इसके साथ तो बच. यानी ये पता क्या किया है मेरे मैनेजर ने, ये आए यहाँ पे इसको लेके ताकि मैं उन पे ना बरसूं. That's a nice trick. अरे पियानो भी बजा रही है. नाइस. या my furry friend, my brother, my baby handsome, वो तो दूसरे घर पे, वो मम्मी की jurisdiction से बाहर नहीं आ सकता. मैं बहुत मुश्किल से आ गया हूँ बाहर इस स्टूडियो में.
but I miss him. I'm going to be seeing him tonight or tomorrow. All right. Someone's writing handsome is going to get jealous. And someone's written Amal is also jealous because I said that. Yes. कल हम इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं जी। और हमारे इतने सारे ब्यूटीफुल पेट्रियोटिक सॉन्ग AR रहमान सर ने बनाए हैं और काफी पहले भी बनाए जा चुके हैं। में से आपका फेवरेट है, एंड इफ यू दैट फॉर अस? आई थिंक बहुत सालों से पेट्रियोटिक सॉन्ग्स का वो जो एक थ्रोन था, दैट रहमान सर ओनली हैज हेल्ड विद ग्रेट म्यूजिक। कहीं ना कहीं मैंने एक अटेम्प्ट किया था टू मेक अ हार्टफेल्ट रोमांटिक सॉन्ग, एंड उसी फिल्म में मुझे एक चांस मिला टू डू अ पेट्रियोटिक सॉन्ग व्हिच वाज एयरलिफ्ट, तू भूला जिसे, जो के सर ने गाया, कुमार सर ने लिखा। बट आई थिंक द बेस्ट पेट्रियोटिक सॉन्ग व्हिच in the last decade or more maybe would be Orko Bravo Mukherjee's Teri Mitti, you know, with B Prak, Manoj and you know, music supervisor Azim Dayani थे उसपे। और यानी मुझे लगता है वो गाना सदियों तक चलेगा, और वो यानी मुझे पता नहीं अवार्ड्स या कुछ भी क्या यानी जीते ना जीते, बट कुछ गाने होते हैं बियॉन्ड अवार्ड्स, बियॉन्ड द सेंस ऑफ एनीवन। It is an immortal song, and I'm glad that someone has taken over the reins from you know, AR Rahman, and it's a person who's as talented as Orko, and उसे भी नहीं पता कि उससे क्या बना है। You know, it is so perfect, so simple. So Teri Mitti is my most favorite song recently. Patriotic, तो that's the one. That's right up there with the greatest, like माँ तुझे सलाम या वंदे मातरम. I think Teri Mitti is right up there. दो लाइन अगर आप गा दें। ओके, मैं कोशिश करता हूँ। बी प्राक जैसे तो नहीं गा सकता, वो बहुत ही ऊंचा और बहुत ही अमेजिंग गाते हैं। एक बार मेरे को लिरिक्स या कुछ के लिए शो भी ऑफ तेरी मिट्टी पढ़ रहे थे। मेरी ज़मीन अफसोस नहीं तेरे दर दरारा, तू कहती थी तेरा जादू में और चांद हमेशा रहता है। सॉरी, लिरिक्स थोड़ा पढ़ रहा था क्योंकि थोड़े थोड़े वर्ड्स बहुत ही अमेजिंग एंड आई डिडंट वांट टू मिस देम। Beautiful. Thank you. This is my tribute to Orko, Manoj, Azim, Akshay Kumar, Pariniti. What a great film, what music, beautiful. And one of the best original songs of the last 1-2 years, one of the best. You've also posted a patriotic song for the nation आपके social media handle पे, इसके बारे में थोड़ा बताएं। There's also curiosity about your dad's Yes, song. my dad has done a very really patriotic, very wonderful and soulful song, and वो बहुत जल्दी is going to come out, and उसका एक झलक आ चुकी है। And dad is dad, he is our boss. Like if we are somewhere, he's a notch above, and he will always do melodious work. So I think उसकी melody भी बहुत beautiful है. Can't wait for it to release. It's going to be really nice. It's got a beautiful video also. 70s में एक जहाँ किशोर कुमार की वचन गाई जाती थी, कुछ नहीं सुना दे रहा। 70s में, 70s या 90s? 80s में, 80s। बोलो, we'll get to it. In the present day actor who, hello, या सुन रहा हूँ मैं। सुनो, पहले आप बोल लो फिर मैं बोलूँ। अभी तो सुनाई नहीं दे रहा। नहीं दे रहा। अभी जो नए एक्टर्स हैं, जनरेशन के एक्टर्स हैं, आपको लगता है सबसे ज्यादा आपकी आवाज किस पे ज्यादा टाइम था? 80s में किशोर कुमार की आवाज अमिताभ बच्चन जी के लिए काफी लोग पहचान, उनकी आवाज है। आपके हिसाब से? आई थिंक पहले तो मैं सिंगर कभी यानी ये सिंगिंग वाली ड्रीम लेके ही नहीं आया था, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक हार्टफेल्ट सिंगर हूँ। मैं कोई लर्नड सिंगर नहीं हूँ। मैं म्यूजिक सीखा हूँ, सिंगिंग मैंने ज्यादा ध्यान दे के सीखी नहीं है। बहुत सुर वुर मेहनत करके मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, टाइम लेता हूँ और दिल से गाता हूँ। यू नो, आई एम नॉट 100% सिंगर like maybe अरिजीत और अरमान और सोनू निगम, के एंड ऑल दिस गाइस, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
अब तक तो मैंने वरुण और सूरज के लिए गाया है, बट वरुण धवन के साथ यानी ऐसा लगता है कि वरुण ही नहीं गाया। जो है संग जो बेड़ा तेरे नैनों से टाका, इट लुक्ड, अगर मैंने नहीं बनाया होता गाना और मैं सिर्फ स्क्रीन पे देखता तो मुझे लगता वरुण गा रहा है, यानी एप्ट आवाज है। एंड Okay. आई थिंक विद वरुण धवन यानी ही इज रियली क्लोज टू मी ऑल्सो, एंड बहुत ही अमेजिंग फिल्म हम लोग ने साथ में की, बद्रीनाथ, एंड उसके गाने भी अच्छे थे। बट मेरा पहला एक कमर्शियल गाना था वो जहाँ मैंने गाया। एंड आई थिंक मैं रोमांटिक गाने गाना पसंद करता हूँ। मे बी टुमारो फॉर रणवीर सिंह आई माइट वांट टू सिंग और कंपोज मोर इम्पोर्टेंटली, बट आई थिंक वरुण धवन के साथ मेरी आवाज यानी हैंड इन ग्लव परफेक्ट फिट होती है। For Ranveer, you want to sing a romantic number or a very Romantic. Everyone's made him dance. I don't think anyone's given Ranveer Singh his greatest romantic song. I hope I can do that. beautiful? Um, so, what would be your message to your fans for Independence Day? I think there's no message to give as such, because now the only message is stay at home and be safe and don't get out. Independence Day, celebrate at home. Maybe, help a few kids buy their flags and small things that they're trying to sell. उनकी थोड़ी चीजें खरीद लो, सपोर्ट एवरीवन थोड़ा थोड़ा अपने लेवल पे। और मेरे फैंस तो बहुत अमेजिंग है, मुझे उनको क्या कहना। मैं लाइव जाता हूँ एंड दे कंट्रीब्यूट एंड दे रेज ऑलमोस्ट 5-6 lakhs फॉर so many NGOs. So I don't have to tell them anything. They have the same heart as me or maybe better than mine. तो यानी मुझे उनको सिर्फ मैसेज देना है, आप खुद को खुश रखने के लिए मेरा म्यूजिक सुनते रहो, बट लोगों को भी खुश रखना, उन्हें खाना देना, हेल्प देम आउट, बी सेफ, गो आउट ओनली व्हेन इट्स इम्पोर्टेंट। एंड इंडिपेंडेंस डे पे आई नो वी आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, बट इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू बी प्राउड ऑफ योर कंट्री एंड ट्राई योर बेस्ट ऑन योर लेवल टू मेक इंडिया अ बेटर प्लेस। Um, can you sing your favorite number? Or I would not let singing Suraj. You want me to sing one song which I like and Suraj do but? हाँ, Suraj do it. Okay. Which song? मैं रहूँ? नैना 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 गाना क्या है? कितने गाऊँ सब गा दूँ फिर केस हो जाएगा इस वीडियो पे लेबल से। मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ कहूं या ना कहूं, तुम मुझको सदा सुनते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। Lovely. This was beautiful. And thank you so much for doing the live with us. Anytime. Next time I hope we have a more dangerous internet connection. नहीं तो मैं किसी को भेज देता हूँ पुणे टाइम्स के ऑफिस। मेरा एक वाईफाई वाला है जो इधर खड़ा है 1 घंटे से, कि वो जाएगा नहीं। घर पे है, बट हम अगले लाइव पे maybe you should send someone to fix the internet. Done. I will do that. And I would want you to say hi to Pune Times team. Yes. They are big and हम सबकी शाम, वो कहते हैं ना, हमारी शाम बना दी आपने अपने गानों के साथ. Thank you so much. A big thank you to the Pune Times team and you, Amrita, for doing this. It's been awesome and I got to sing so many songs and medleys जो मैंने बाकी में नहीं गाए. थोड़ा कट हो गया है, but वो आप जब अपलोड करोगे वो एडिट करके थोड़ा आप कर देना if you can. ठीक है. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. See you. Thank you so much. Bye guys. I'll see you back again live on my Insta. See you. Bye. Okay. Bye. Thank you so much. Thank you. Thank you.